I shop from everywhere, but honestly, you know, in a place like Mumbai especially, where, you know, driving takes so much out of your day, like, you know, half your day is gone just by driving. To have a database like FashTags.com, shoes, which are my favorites. Beautiful. Thank you. Round of applause. She's looking beautiful. Thank you. Thank Few you guys. claps for me as well. I would like to say it was effortless. I would like to say I woke up like this, but God knows I didn't. So it took me a couple hours and it took a couple people, and that's pretty much my story. I mean, when you're in front of all these cameras and you have to go back and you have to look at photos and videos of yourself, you definitely want to make sure that you're presentable and stuff. So I have a full team that got my hair did, got my makeup did, and all that. But you know, for the normal day-to-day person, that's exactly what they want as well. They want to show their best side of themselves to the world. So now, ladies and gentlemen, I'm sure that now we have our star here. I'm sure you want to know more about the brand FashTag.com, and for that, now I would like to invite the conceptualizer, the founder, and the brain behind FashTags.com. Ladies and gentlemen, please welcome the gorgeous Miss Natasha Sarugi. Yay, Natasha! Hello everyone. Lauren, thank you so much for being here. Then you just have to look up and you will find it on fashtags.com. So it is a store locator. If you want to know whether to go or not to go to this brand collections, and you will get your decision made for you. So it is a virtual showroom. If you want to follow your fashion icons who are celebrities, or your friends who are fashionistas, or you can just you can get all of that on fashtags.com, because it is an interactive social media platform. Fashtags.com is one-stop shop for all your fashion queries and fixes. So this is what is Fashtags, and I hope it helps everyone to be more fashionable. Nobody should stop being fashionable. Absolutely, and from now, Lauren and me, and of course many of us, are gonna shop from FashTag.com. So ladies and gentlemen, huge round of applause for this amazing brand in the market. So, okay, last word from you, Lauren. What do you have to say about this new revolution, sort of that FashTag.com, as Natasha said, that now you don't have to rush to separate stores and find, oh, I like this, I don't like this. You can just see their collections and then decide whether go to that particular shop or not. How do you think it will change the way a girl shop? I mean, you're still going to go to those stores, but it cuts out so much time of your day. You get to know exactly what you want before you're going. You know exactly what the stores are. You're not going and trying to sift through stuff, and you're like, you end up at the end of the day not buying anything, you know? So you know exactly what people are going to have, and I can't wait personally when I have a trip where I'm going to, let's say, Delhi, and I've got 2 hours to spare, and I'm like, where do I go shop? You have no idea. You're not from there. You get to see what these other places have. I mean, again, I think it's 2016 when we have things like Uber, where people come and pick us up and people deliver us, you know, food from these different things. It's again one of those platforms that we just should have right now, and no one's done it until Natasha just brought it to us. So I'm super excited to be here and see this for the first time, and I hope you guys are. Yes, and we're excited now. We've been waiting.
different from others? I honestly haven't seen anything like fashtags.com. I've been saying today that, like, you know, you're in a city like Mumbai where it takes so long to drive. Okay, it takes so long to drive to these stores and stuff. So at least you get to go on a place like Fast. Where your stores are, what exactly your stores have in stock. You get to pretty much pick out what you want to get, and it'll just take so much time out of your day. Plus, it's a very interactive website where you get all these bloggers on there. You get to get, you know, people's comments, so it tells you don't go to this store, or maybe do go to this store because there's a lovely sale. So it's just 2016. I haven't seen anything like this. It's very original, and it's going to be one of my favorite websites for sure. Any website you have tried for shopping? I personally love to do online shopping. I think it's great to sit in the comfort of your own home, you know, eating food and being online and picking out your stuff. So this is, again, going to be one of those things for me. And, you know, if you're traveling, you're going to a city that you don't know and you don't know where the stores are, you know, it just cuts out all that time. You go on fashtags.com, you type in, let's say you're in Delhi or Goa, you type that in, you see exactly where the stores are, what they have in stock. It's just brilliant. It's perfect. It's a fashion store. What fashion tips you would like to give to all? 3 fashion tips I would like to give you guys is always be yourself, unless you're dressing up as a character. If you're dressing up as a character, you better rock it with confidence and have fun with it. Have fun with fashion, always. Valentine's Day is nearby. Valentine's Day Huh. is nearby. How you are planning to celebrate your Valentine's Day? Valentine's Day, I honestly, this is honest truth, I have no idea what I'm doing. I have no idea what I'm doing. I think I'm working that Who's day. the lucky guy? Um, From where he belongs to? from where he belongs to? I don't know. I don't know if there is a lucky guy. Please do tell us. Give some hints. I mean, Some hints? Maybe later. Maybe later. Any dancer? No. Any actor? Okay. Did you get any gift? Any special gift this week? Am I getting or giving? Did you got any special gift? Have I gotten one? No, but if you want to gift me, you can send it to... No, I'm just kidding. Not yet, no. Okay, share some memories related to Valentine's Day in your college days. In my college days, I actually surprised with making him dinner, because usually it's the guy that's playing up to the girl and stuff, but I was like, no, I'm gonna rock it this year. I made dinner and I took him to a big basketball game. I think it was like the Lakers game, so it was in the United States, so it was a pretty big deal back then. Okay, tell us. Do you believe in love at first sight? Oh God, love at first sight is really hard. I believe over time that when you really get to know someone, that's when you fall in love. I believe in lust at first sight. I believe in the connection that you have with someone. You know, you always run into millions of people, but then there's that certain one person that comes along where your heart just sings to. So I believe in that. Thank you so much. Sure. Yeah, thanks guys. You are looking very beautiful. Tell us about your look and dress. Huh. I'm wearing SR Stores and Macarne jewelry. I just really wanted to be sunshiny today because it's a really nice day outside. Yeah. Thanks. Thanks, guys. Just More beautiful? Thanks, guys. Talk to you? Are we rolling? Talk to you. Sir, some. Okay. Sir, looking second. जब मैं पूछूं तो मेरी तरफ फिर उसके बाद ठीक है. Okay. प्रशांत जानना चाहेंगे आपके फैशन मंत्रा के बारे में और जानना चाहेंगे फैशटैग के बारे में कि कितना आप फैशन एडिक्टेड हैं. मेरा फैशन मंत्र सिंपल है. It should fit you well and you should be comfortable. मैंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा. मैंने कुछ 7 या 8 किलो वजन कम किया. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली प्रॉब्लम कभी कपड़ों में नहीं थी, हमारी बॉडी में थी.
तो अगर आपकी बॉडी फिट है तो कपड़े आप पे अच्छे लगेंगे और फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, पर कंफर्ट उसमें आपको महसूस होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं, वरना बुरे लगेंगे। जानना चाहेंगे फैशटैग के बारे में, कितने जानते हैं साइट के बारे में? आज लॉन्च हुई है। आज मैं समझाऊं फैशटैग्स क्या है। आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम कमिंग टू नो व्हाट फैशटैग्स इज, एंड आई एम इम्प्रेस्ड दैट यू नो अ वेबसाइट, अ पोर्टल ऑफ दिस नेचर फॉर फैशन, यू नो गाड़ियों के लिए है और अलग अलग चीज़ों के लिए है, फोन्स के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, फैशन के लिए होना, जो सारे डिपार्टमेंट स्टोर्स या ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ता है, पर्सपेक्टिव शेयर करता है, ट्रेंड्स शेयर करता है। इट्स इनक्रेडिबल। आई विश द बेस्ट। काफ़ी फैशनेबल वेबसाइट लॉन्च हुए, काफ़ी बेहतर है। हाँ। आप कौन से वेबसाइट से यूज़ करते हैं टू बाय फैशन ब्रांड? वेल दोज आर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, तो वहाँ पे आप जाते हैं और आप चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ पे जाके आपको एक होमवर्क करने को मिलता है कि मुझे जो खरीदना है मैं कहाँ जाऊँ, और उसके बारे में आपको सीखने को भी मिलता है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उस ट्रेंड के बारे में, और ये कपड़ा ऐसा लगता है वैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी, और ये जितने भी हैं स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इनसे भी आपकी लाइफ ईजी हो रही है, बट द मोर द मेरियर। दिस इज डिफरेंट, दिस डेफिनेटली वेरी इनोवेटिव। प्रशांत, जानना चाहेंगे कि आपको अपनी कौन सी कोई ड्रेस याद आती है बचपन की, या कोई अपनी मेमोरीज की, यार वो मेरी पैंट थी, मेरी शर्ट थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, उसे देख के लड़कियाँ इंप्रेस होती थी, या फिर मुझे पर्सनली अच्छी लगती थी? इम्प्रेस तो कोई भी नहीं होता था, क्योंकि जो चीज़ यादगार है वो इतनी वाहियात थी। जब मैं स्कूल में था, आई हैड अ फेवरेट ग्रीन कलर पैंट एंड अ येलो कलर शर्ट, और मैं दोनों को साथ में पहनता था। पर उस वक्त आई वॉज प्रॉब्ली 8 or 9 years old. But as I went into college, then I started experimenting with brands like Zara and Gap and H&M and all of these. Being from New York, these were my favorite brands. I just always believed in simplicity, bold colors and fitted clothes. कोई फीमेल फ्रेंड ने कुछ टिप्स दिया हो कि हाँ आप ये पहने, आप ये ज़्यादा बेहतर लगते हैं, इसमें आप ज़्यादा उनको मैं बहुत अच्छा लगता था, और मैं जो पहनता था वो अच्छा लगता था। तो कभी ये नहीं कहा कि यही पहनो या ये मत पहनो। और स्कूल के दिनों में फीमेल फ्रेंड्स थी नहीं, तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये येलो शर्ट उतारो और ये ग्रीन पैंट उतारो। वो अभी भी कपड़े हैं आपके पास? वो तो नहीं है, अच्छा है नहीं है। वैलेंटाइन डे आ रहे हैं, वैलेंटाइन डे को लेके क्या क्या प्लानिंग चल रहा है? I've been married for quite some time now, so you know, unfortunately, we just don't give it too much thought anymore. It's a nice dinner out, presents exchanged, and hopefully a good, pleasant day with your loved one. That's it. जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म नीरजा जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी प्रमोशन हो रहा है, आपको कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? इतना तो मालूम है कि फिल्म को इज्जत बहुत मिलेगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इसके गाने बड़े मशहूर हो रहे हैं, इसके ट्रेलर जो है लोगों में, इंडस्ट्री में बहुत सराहा गया है। टेक्निकली इट्स अ स्ट्रॉन्ग फिल्म, एंड आई होप कमर्शियली इट इज़ अ स्टुपेंडस सक्सेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन पुट इनटू द फिल्म टू एक्चुअली मेक अ 747 प्लेन। कौन सी हिंदी फिल्म के बारे में आप जानते हैं जिसने एक्चुअली एक प्लेन बनाए जो अंदर सब कुछ काम कर रहा है, सिवाय इंजन के एवरीथिंग इज अ फंक्शनल प्लेन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ हीरोइन और अ हीरो, आई वुड से, नीरजा भानोद। आई होप द एंटायर कंट्री इन द वर्ल्ड गोज टू वॉच इट। नीरजा को शुभ चक्र अवार्ड दिया गया था जी। हाँ, तो क्या लगता है इस फिल्म के बाद आपको या सोनम कपूर को कुछ अवार्ड, नेशनल अवार्ड समथिंग? आई थिंक सोनम को या शबाना जी को मिलने का इसमें काफ़ी स्कोप है। मेरा रोल जो है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन लिमिटेड रोल है, क्योंकि फिल्म एक ट्रेजेडी पे आधारित है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन वो हाँ एक ऐसा रोल है कि लोग हॉल से निकल के बोलेंगे हाँ वी रिमेंबर दैट कैरेक्टर वेरी मच, एंड इट वाज अ टफ कैरेक्टर टू प्ले बिकॉज ऑफ अ ट्रेजेडी। बट हाँ, सोनम डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट एंड शबाना जी एज वेल। नीरजा भानोद को तो पाकिस्तान में भी ब्रेवरी का अवार्ड मिला था, जो कि शायद पहली इंडियन थी जिसको पाकिस्तान में ब्रेवरी का अवार्ड मिला है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, डू गो वॉच इट। जी, जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में कोई ऐसी टफ सिचुएशन? फिल्मों से जुड़ी टफ सिचुएशंस वो हैं कि एक लड़का जो बम्बई से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, न्यूयॉर्क में सब कुछ छोड़ के बम्बई आ गया एक्टर बनने के लिए, और इंडस्ट्री में जो मैंने स्ट्रगल देखा है लगभग 5-6 साल का, वो हर दिन मेरे लिए टफ जर्नी थी। मैंने जितना भी कुछ देखा है लाइफ में, चाहे वो इसक हो या आइडेंटिटी कार्ड हो या 6 - 5 = 2, हाल ही में नीरजा आ रही है, एक और फिल्म मेरी कंप्लीट है 19 जनवरी, और फिलहाल मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है इरादा। उसमें नसीरुद्दीन शाह है, अरशद वासी है। तो अच्छी फिल्में, अच्छे रोल्स अब करने को मिल रहे हैं, लेकिन शुरू के जो 5 साल थे वो हर दिन एक टफ जर्नी थी। सोनम कपूर और शबाना मैम के साथ काम करने का किस तरह का आपका एक्सपीरियंस? मेरा इसमें शबाना जी के साथ काम नहीं है, सोनम के साथ काम में है, और उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। शी इज़ अ स्वीट पर्सन, टैलेंटेड पर्सन एंड अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। थैंक यू सो मच। माई प्लेजर, थैंक यू।
तो मैम हैशटैग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्रिएटिव है, कैसा लगा आपको जो कॉन्सेप्ट हैशटैग ने जहाँ लॉन्च किया? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी नायाब चीज़ लेके आई है नताशा, एंड वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, और मेन है कि बहुत टाइम से ये कुछ ऐसी चीज़ खोज रही थी कि जिससे वो अपना करियर बनाए, और हम लोग बहुत खुश हैं उसके लिए, एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट कि उसने एक ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई है जहाँ पर आप शॉप पे जाने से पहले ही आप अपने कंप्यूटर पे पता लगा सकते हो कि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके पसंद की चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप खुद कितनी फैशन कॉन्शियस हैं? आप खुद कितना फैशन वेल, फैशन कॉन्शियस तो सब लोग होते हैं, बट मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक आजकल की जो लड़कियां हैं दे आर वेरी फैशन कॉन्शियस, एंड दे कीप देम ड्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से वो लोग पोर्ट्रे करती हैं और दिखती हैं, और लेकिन फैशन कॉन्शियस हूँ, वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे ऊपर अच्छा लगता है, ये नहीं कि ऐसा कुछ भी पहन लिया कि बस वो मुझे सूट करेगा ही करेगा। साड़ी पहनती है जैसे आप रखती हैं अपनी, कभी शत्रु जी आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं या वो बोलते हैं ये वाली साड़ी नहीं है वो वाली साड़ी कुछ? हाँ ज़रूर, मर्दों को तो ये बिल्कुल ये मिला हुआ है ना राइट, कि आप लोगों को पूरा राइट है बोलने के लिए, बट ऑफ कोर्स ही डज अप्रिशिएट जो मैं पहनती हूँ, और स्पेशली साड़ीज़ के लिए तो बहुत ही उनको साड़ीज़ फिर मेरे पहनना बहुत पसंद है। पर्सनली कौन सा फेवरेट ब्रांड है आपको? क्या साड़ी में क्या ब्रांड पहनना पसंद है? वेल, मैं सब पहनती हूँ, मुझे हर प्रांत का, जैसे कांजीवरम है, शिफॉन्स हैं, या फिर हमारे पटना के जो है मधुबनी की साड़ियाँ, बिहार की जो स्पेशलिटी है मधुबनी साड़ियाँ, वो फिर कलकत्ता से जो है, हर प्रांत की साड़ी मुझे अच्छी लगती है। नहीं, सोनाक्षी अपने आप में बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेस करती है, और बहुत सेंसिबली ड्रेस करती है, अपने आप को वो एक्सपोज नहीं करती है, और मुझे लगता है मुझसे उसने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, और भगवान करे ऐसे ही रहे, तो बस। फैशन के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बस मेरा एक ही टिप है कि आप वही पहनो जो आपके ऊपर अच्छा लगे। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, उसको ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश मत करिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आगे जाके लोग उसको अप्रिशिएट करते। सोनाक्षी मैम आप फ्रेश टैग यूज़ करते हुए नजर आएंगे? हाँ सोनाक्षी मैम, ये जो वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, हाँ, वो तो बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये जो हमारी जो बेटी जैसी है नताशा सरोगी, जिसने ये मतलब कॉन्सेप्ट को लाया है, और वो मतलब वो सोनाक्षी सब आपस में फ्रेंड्स हैं, और आई एम डेफिनेट कि वो ज़रूर फॉलो करेगी फैश टैग्स को। जानना चाहिए जो उनके फैंस सोनाक्षी मैम का जो अभी मैरिज के लिए क्या उनके प्लान से आपकी तरफ से हुआ है, उनकी तरफ से हुआ है? अभी नो प्लान्स फॉर मैरिज, अभी वो काम करना चाहती है, उसका लंबा सफ़र अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है उसका सफ़र, और वो ज़रूर चाहेगी कि ज़्यादा मीनिंगफुल फिल्म्स करें। अब कमर्शियल फिल्म्स भी कर रही है, लेकिन उसको मतलब अभी ये है कि मैं ज़्यादा मायने वाली फिल्में करूं, जिसमें कुछ मायना हो, जिसमें कोई मैसेज हो, तो इसलिए अब उसकी फिल्म आएगी अकीरा, जो कि मुरुगदौस जिन्होंने गजनी बनाई थी उसकी डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद फोर्स 2 जॉन इब्राहिम के साथ है, उसके आगे बातें चल रही हैं, और जल्दी से शुरू होंगी उसकी 1-2 पिक्चरें जल्द से। थैंक यू। ओह, आई एम अ वेरी प्राउड मदर। बहुत एकदम हमारे फैमिली, आई थिंक बहुत गर्व की बात है कि सोनाक्षी हमारी बेटी है, और उसने हमें कोई भी गुंजाइश नहीं रखी कि हम कोई किसी भी तरह से दुखी हो उसके काम करने से, या जो भी इस इंडस्ट्री में रहने से। शत्रुघ्न सर काफ़ी बिजी रहते हैं जी जी, तो बड़े पर्दे पर फिल्म की वापसी कैसे? ऑफिस तो बहुत आते हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल MP हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी पटना साहिब है,
तो उस वहाँ पर उनको ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो इसलिए नहीं दे पा रहे, लेकिन आई थिंक 1-2 फिल्में शायद करेंगे जल्द। जो भी फिल्में सोनाक्षी जी वो ऑफर होती है, उसमें आप उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो आप पढ़ती हैं या फिर सब कुछ नहीं, हम लोग ज़रूर उसमें रहते हैं इनिशियल मीटिंग्स में, जैसे कि जो स्क्रिप्ट आती है उसमें भी थोड़ा हम लोग का रहता है, लेकिन दखल अंदाजी नहीं होती है, और अगर उसे पसंद है तो ज़रूर वो अपना लास्ट जो होता है वो उसी की वो होती है। थैंक यू। I just saw you. We are matching. Yes. We are both matching. I just saw you in one mat with your little puppies. I've had 3 babies. They're so adorable. Yeah, they're not even open their eyes. Come back. Yeah, but you are having a good time with all her content. हम सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। Thank you. अपना एक टेस्ट है, द वे यू कैरी योरसेल्फ इज अमेजिंग। बताना चाहिए कुछ कि फैशन के बाद में बात करते हैं, पहले आपकी पसंद नापसंद जानना चाहिए, कैसे तैयार करते हैं? मुझे शौक है इन कपड़े पहनने का, लाइक अलग अलग आउटफिट्स पहनने के लिए, एंड जस्ट बेसिकली आई लाइक ड्रेसिंग अप। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिकेम एन एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे ड्रेसअप करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं छोटी थी तभी मैं मम्मी को देखती थी मिरर के सामने बैठ के मेकअप करती थी, हेयर करती थी, तो एक ख्वाहिश थी दिल में कि मैं बड़ी होकर मेरी मम्मी की तरह करूँगी। तो आई थिंक दैट्स जस्ट कैरीड ऑन, और अभी मुझे बहुत शौक है अलग अलग आउटफिट्स एंड अलग अलग डिज़ाइंस एंड ट्रेंड्स एंड ट्राई करने के लिए। एंड आई एम लकी कि आई हैव द kind of face or the body or whatever, most of the things that I try on, they'll kind of manage to look good on me. ऑनलाइन के आउटडोर शॉपिंग के एक्चुअली अब तक मैं ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती आई हूँ, मगर मेरी नीस है ना निसा, वो बहुत ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा जाती है, तो अभी वो मुझे सिखाने वाली है कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। मैं ज़्यादातर बुक्स ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ ऑनलाइन अपने किंडल पे, लेकिन हाँ अभी निसा मुझे सिखाने वाली है कि अब तक उसने कुछ किया नहीं है मेरे लिए, मासी हूँ मैं, तो आई थिंक आई एम द वन हु इज सपोज्ड टू शॉप फॉर हर, बट आई थिंक आई विल गेट बेटर एट इट। एंड फैशटैग्स इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि वो आपको स्टोर्स दिखाते हैं कि कहाँ क्या चीज़ मिलने वाली है। अगर आपको कुछ अर्जेंट चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, और अभी ट्रैफिक का मामला ऐसे ख़राब हो गया है हर सिटी में कि यू डोंट नो वेयर टू गो, सो इन अ वे दिस फैशटैग्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इमीडिएटली ऑनलाइन जा सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी दुकान में कहाँ मिलेगा आपको, और वहाँ जाके आप जल्दी से खरीद ले सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इट्स लाइक अ फेसबुक फॉर फैशन, फॉर सोशल इंटरेक्शन हो सकती है। और आजकल सोशल मीडिया, विच आई लव सोशल मीडिया, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, ट्रैक कर सकते हो आपके फ़ोन से, आप कनेक्ट रहते हो अपने दोस्तों के साथ। तो अभी शॉपिंग भी एक काइंड ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस हो जाएगी, जहां आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और आप शॉप भी कर सकते हो, सो इट्स वेरी नाइस। आप पर्सनली कैसे पसंद करती हैं कोई भी चीज़, या कुछ लोग होते हैं वो बहुत टाइम लगा देते हैं अपने ड्रेस को, अपने आउटफिट्स को चूज करने के लिए, आप फटाफट कोई चीज़ उठा लेती हैं या फिर आप भी टाइम लेती हैं? एक्चुअली मैं काफ़ी फटाफट चूज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग में अपना वार्डरोब ऑलरेडी प्लान आउट करती हूँ, एंड प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, जस्ट डिसाइड, so you kind of set it in your head. कुछ टिप्स लेके काजल से काजल से एक्चुअली काजल का बॉडी टाइप और उसका स्टाइल कोशेंट इतना डिफरेंट है मुझसे, लाइक माई स्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम काजल्स, बट क्योंकि हम बहने हैं, वी लैंड अप इवेंचुअली, 1-2 चीजें होंगी हमारे वार्डरोब में जो एग्जैक्टली सेम चीज है, लेकिन वो कभी मेरे तरह नहीं पहनेगी और मैं कभी उसकी तरह नहीं पहनूंगी, क्योंकि वे जस्ट सच डिफरेंट पर्सनैलिटीज। मैं फैशन की बात करूँ तो फैशन के बारे में जानना चाहेंगे, व्हाट डज फैशन मीन इन योर लाइफ? फैशन फॉर मी इज हैविंग फन। अगर लड़कियों के लिए फैशन होना चाहिए कि आप अपने आप के लिए करो, आप मजे लो, आप अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, आप एज लॉन्ग एज यू लाइक व्हाट यू आर लुकिंग एट, दैट्स फैशन फॉर मी। यू डोंट हैव टू कन्फॉर्म, यू हैव टू बी इंडिविजुअल, फाइंड आपका जो पर्सनैलिटी है उसको सूट करना चाहिए।
So in today's world, to be a fashionable is mandatory or not? To be fashionable in today's world, I think whatever you do that is true to you is fashionable. मैम कोई भी ड्रेस आपको अपने बचपन की याद आती है खुद की आपको अभी भी याद ओह माय गॉड, आप बहुत स्मार्ट हो ये क्वेश्चंस पूछ के, क्योंकि एक है ड्रेस जो मुझे डेफिनेटली याद है. मेरे ग्रैंडफादर शशधर मुखर्जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट किया था. इट वाज अ फ्रिली प्रिंट ड्रेस और वन शो टाइनी स्ट्रैप था, और वो ड्रेस इतना प्रिटी था कि मैं वो पहनती गई जब तक वो मुझे फिट भी नहीं होता था. मैं पहनती गई वो ड्रेस एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट ड्रेस. नहीं, अभी नहीं है, वो बहुत छोटी थी. मैं 4 साल की या 5 साल. आपने सोचा नहीं कि वो ड्रेस आप निस्सा फ्रिली पिंक ड्रेस अगर मैं निस्सा को गिफ्ट करूंगी वो मुझे मार डालेगी, एब्सोल्युटली मार डालेगी. शी विल बी लाइक, चिची मासी मैं पिंक ड्रेसेस और फ्रिल्स नहीं पहनती. सो नो, शी इज ग्रोन आउट ऑफ दैट. वैलेंटाइन डे का डे काफी करीब आ चुका है धीरे-धीरे. वैलेंटाइन, आप अभी फैशन के बारे में पूछिए, फैशन के बारे में पूछिए. वैलेंटाइंस डे होने वाला है, देखेंगे. जहाँ तक बात करें कि आपके जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, वो तरस रहे हैं किसी फिल्म में आप आए, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी कहानी में आपको देख पाए. एक्चुअली अभी मेरी जो पिक्चर आने वाली है वो अन्ना हजारे की बायोपिक है जो मैं कर रही हूँ. शूटिंग ऑलरेडी लास्ट ईयर शुरू हो गई है, इस साल कंप्लीट हो जाएगी और होपफुली अप्रैल मई जून में वो रिलीज कर लेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Manasi wants to know about hashtag from your own words. I think this is very needed. I've just got the entire brief for the entire website. I mean, you know, there's so many times I was trying to locate a Sephora recently, and you know you try to get onto Google, you try to get onto Yahoo, you're trying to find a store, the closest store located to you. It's very difficult. This was needed. You know, sometimes you just want to pick up a particular brand of shoes or a get onto a dedicated site to do this for someone like me. It is a win-win. So I think it's fantastic. Most of the time, what do you prefer, online or outdoor shopping? I do not like online shopping at all. So for me, this is, I wouldn't shop online as much, but I will definitely go look for stores because that's something I'm searching for all the time. You know, I have to keep calling my best friend who's fashion director, Grazia, to, you know, where can I get this outfit or where can I get that outfit, and she'll keep telling me where to go. Sometimes it's, you know, as far as Kala Ghoda, but you don't know that someone's retailing. So something like this is really needed for people who are, I think, A, in the limelight, B, love fashion, because most of us need to change up our looks, our you know, personas on a day-to-day basis. Though I don't believe in fashion waste, so I think in time when I want to associate with them as well later on, because I'm planning to launch something called Hottie Spotty Loves, which is pre-loved fashion. I don't want people to waste what they buy. It's not for any charity, it's not for anything, it's just for all of us to sell what we've already bought and worn and can't wear, and, you know, get more money to shop again. So these are great things to go to, because for a person like me who doesn't have a store, or there are a lot of other people who retail brands, who retail, you know, from their houses. Like there's the fantastic label called Chola by Suhaya, and she's constantly doing these pop-ups, and you can't find where they are. And a website like this is needed. It's very much needed. Mansi wants to know what's your own fashion look. I've had a very simple mantra since forever. If you have it, flaunt it. If you don't have it, for God's sakes, hide it. And it's as simple as that. Most people tend to follow trends blindly. I think the whole idea about fashion is creating something unique about yourself. It's about picking and choosing from all over and figuring what is good for you. And that's always been my mantra. I don't believe in what's in season or out of season. I still have, which have now become vintage, I still have boots and, you know, Roberto Cavalli handcrafted jeans from 15 years ago, which I still wear. So I think it's about respecting the industry, respecting the money that you've spent on the things that you buy, and giving it full usage. So don't waste. Hide it if you don't have it. Flaunt it if you have it. So that's my mantra. मैंने अपने लिए कभी डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन मैंने कभी किसी स्टाइलिस्ट की हेल्प नहीं ली है आज तक. जो भी मैं पहनती हूँ, जैसा भी लुक डिज़ाइन करती हूँ, या स्टेज पे हो, या मेरे वीडियोस पे हो, या पिक्चरों में हो, हमेशा खुद को स्टाइल किया है. मुझे बहुत पसंद है. यू नो, अंग्रेजी में मैं कहती हूँ, इफ म्यूजिक इज़ माई सोल, फैशन इज़ माई पैशन. मतलब फैशन रग रग में है म्यूजिक के साथ. और स्टेज पे परफॉर्म करने से क्या होता है कि आपको हर शो पे कुछ अलग
मेकअप के ज़रिए, हेयर के ज़रिए, शूज़ के ज़रिए, पर्सोना के ज़रिए, हर वीडियो पे इतने अलग अलग लुक्स हमेशा मेंटेन करने होते हैं कि आपको फैशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाना होगा. आई रिमेंबर कुछ 10 साल पहले मुझे सीरियस प्लेबैक सिंगर्स कहते थे कि आप अपने गाने में और म्यूजिक में सीरियस नहीं हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो स्टेज पे. और आज सब लोग वही डिजाइनर्स के पीछे भाग रहे हैं, वही कर रहे हैं. सो आई थिंक एक्साइटिंग टाइम है फैशन के लिए, म्यूजिक के लिए, एंड आई लव स्टाइलिंग माई सेल्फ. What does fashion mean in your life? कोको शैनल के शब्द मुझे याद आ रहे हैं. फैशन इज समथिंग आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते. आपके हर चीज़ में, आप जिस तरीके से खड़े हैं इस वक्त, जिस तरीके से लोग तरीके से माइक्स पकड़े गए, हर चीज़ में फैशन है. आई थिंक इट्स लाइक आर्ट. फैशन को बहुत लोग कहते हैं कि समझना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक बेसिकली फैशन इज एक्सप्रेशन. जो दिल में है आप कपड़ों के जरिए, लुक के जरिए एक्सप्रेस करें. लोगों को एक जरिया मिलता है, कुछ अंदर उनमें जो चल रहा है आर्टिस्टिक ट्रेंड, वो कपड़ों के जरिए या मेकअप या ज्वेलरी के जरिए वो बाहर आ जाता है. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. कुछ लोग बर्ड से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग रस्तों से, कुछ लोग लाइट से. सो फैशन इज रियली एवरीथिंग दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. कोई फैशन आइकॉन जिसे आप फॉलो करते हैं? फैशन आइकॉन फॉलो नहीं करती हूँ किसी को, बट पहले मेरे कुछ फेवरेट डिज़ाइनर्स हैं जो रहे हैं इंडिया में. रोहित बाल गुड्डा इज़ लाइक, ही इज़ अ जीनियस. आई लव हिम. सब्यसाची मुखर्जी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं ये लोग. अब्रॉड आई लव, अभी बहुत जाने माने हैं, बट एक इंसान है रिक ओवंस. मैंने आज तक उन्हें किसी भी ट्रेंड से बोरो करते नहीं देखा. वो कुछ भी, हुसैन शालियान एंड रिक ओवंस मेरे 2 फेवरेट्स हैं. देर आर लाइक द हॉल ऑफ फेम्स. वो आप यकीन नहीं करेंगे, एक शो पे एक लड़की बैठी हुई है टेबल पे और वो उठती है और वो पूरा टेबल खोल के उसका ड्रेस बन जाता है. इस तरीके के जीनियसेस हैं. सो आई थिंक मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और आश्चर्यचकित हूँ फैशन इंडस्ट्री से, क्योंकि इतना टैलेंट है और कपड़ों को इस तरीके से बदन पे लगाना, इट्स क्वाइट एन आर्ट. इट्स ब्यूटीफुल. सो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल. इंडियन की बात करें तो आपके हिसाब से इंडियन कहाँ फैंटास्टिक. आप देखिए, कल ही मैं पढ़ रही थी कि बियॉन्से ने शायद अबू जानी संदीप खोसला का एक जैकेट पहना है कोल्ड प्ले की वीडियो में. मेरे फेवरेट्स हैं फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक. उनके कपड़े तो मतलब हर एक इंटरनेशनल स्टार पहन चुका है. और अभी बियॉन्से ने भी उनके अपनी खुद की वीडियो में एक पहना है फॉर्मेशन में. इंडियन फैशन इज लाइट ईयर्स अहेड, क्योंकि हमारी कंट्री में जो कल्चर है, बाहर लोगों को इतनी वैरायटी नहीं मिलती है. एंड व्हाट आई फाइंड, आई एम वेयरिंग मसाबा टुडे. वो इंडियन प्रिंट्स लेते हैं और उसको एक अलग ही साउथ इंडियन स्टाइल में, वेस्टर्न सिलुएट्स में, ये एक वेष्टी बांधने का तरीका है, अंदर उन्होंने एक ड्रेस डाला है. सो आई थिंक दे वेरी लकी इंडियन फैशन डिजाइनर्स. और अगर उनकी कारीगरी अच्छी है तो दे आर वे अहेड ऑफ द गाइज अब्रॉड. बस इतना है कि यहाँ पे हम लोग रुपीज में खर्च करते हैं, वहाँ पे डॉलर्स में तो वो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं. दैट्स इट. वैलेंटाइन डे को लेकर काफी प्लानिंग चालू है, सेलेब्स की, स्टार्स की. आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा हर वैलेंटाइन डे, अभी मेरा बच्चा 9 साल का है. आई थिंक मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए प्यार के लिए. आई थिंक प्यार का इजहार रोज़ होना चाहिए. लेकिन वो स्कूल जाता है, मैं काम करती हूँ, मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो बहुत बिजी रहते हैं. तो ये फेस्टिवल्स जो होते हैं एक मौका देते हैं हम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए और लव को और मजबूत करने के लिए. सो आई लव इट. सो आई रिजर्व्ड अ डिनर विद माय सन एट अ न्यू जापानीज रेस्टोरेंट. सो आई विल बी enjoying it. Thank you.